हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. In the previous video we have covered chemical equations and their balancing, and in this video we will discuss about the types of chemical reactions. Okay, so first of all we will study our first 4 types of chemical reactions. In the previous video yesterday I have given you whole the syllabus in which I have written types of chemical reactions. So from those types of chemical reaction, first of all we will take first 4 types of chemical reaction and then another reactions. So the chemical reactions which we are going to study are, first is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, and fourth is double displacement reaction. Okay, first of all we will study about these 4 kind of reactions: combination, decomposition, displacement and double displacement. So let's start one by one. The first is combination reaction. These are very important from exam point of view. आपको इस टॉपिक से भी कोई एक क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स में जरूर मिलेगा. सो प्लीज बी केयरफुल एंड स्टडी सीरियसली. ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज इट्स नेम सजेस्ट. क्या नेम है? कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मीन्स कुछ चीजें कंबाइन हो रही होंगी. ओके, तो आपको नेम से ही चीजें समझ आई. डिकम्पोजिशन मीन्स कोई एक सब्सटेंस है जो डिकम्पोज हो रहा होगा. डिस्प्लेसमेंट मीन्स किसी एक रेडिकल का या किसी एक सब्सटेंस का कोई दूसरा सब्सटेंस डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा. डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स 2 जगह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा. तो लेट्स टेक वन बाय वन. ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to make सिंगल प्रोडक्ट. ओके, तो कैसे पहचानेंगे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? इसमें आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2 or more रिएक्टेंट्स. बट आप प्रोडक्ट साइड में जब देखेंगे देन ओनली 1 सब्सटेंस शुड बी देयर. ओके, तो ये जो रिएक्शन होगा इट विल बी दिस काइंड ऑफ रिएक्शन. जैसे A प्लस B प्लस और भी हो सकते हैं, gives you C only. Means reactant में there is 1 or more than 1 substances, but in the product it should be 1 substance. Okay, it is the general form of combination reaction. Now we will take some examples. इसके यदि हम examples की बात करें combination reaction, तो very easy example, C plus O2 gives CO2. ओके, यहां पर देखिए 2 रिएक्टेंट्स बट सिंगल प्रोडक्ट. H2 plus O2 gives you H2O. Now we have to balance it. The previous क्लास में समझाया था. क्या बोला था? डायटोमिक एटम शुड नॉट बी ऑड. यहां पर ऑड है, इसको इवन कर दो. 2 ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 कर दो. इस तरीके से यू कैन बैलेंस. तो बहुत इजी एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. बहुत ज़्यादा कोई टफ एग्जांपल्स की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. एक और याद रख सकते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू मेक अमोनिया.
Here again nitrogen and hydrogen are diatomic and are odd. कर दो 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं. तो these are the examples of combination reaction. Okay, so note it down. So next is decomposition reaction. Decomposition reaction is the opposite of combination reaction. Combination में क्या हो रहा था, one or more reactant and only single product. But here decomposition means decompose होना, टूटना, break होना. Means here a single substance decomposes into 2 or more products. So here reactant will be single but products will be 2 or more. So how will you define? Decomposition reaction is a reaction in which single substance or single reactant breaks up into 2 or more products. Okay, तो डिकम्पोजिशन होने के लिए वी नीड एनर्जी. डिकम्पोजिशन विल नॉट बी ऑन इट्स ऑन. डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एनर्जी होगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी प्रोवाइडेड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर फर्दर क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज. तो वो क्या है वो भी हम अभी जानेंगे. ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक जनरल फॉर्म कैसा होगा. हियर single substance A will break down into 2 or more products. Okay, on when we supply some energy to it. Okay, so it is the general form. अब now energy can be supplied in 3 form, either in the form of heat or in the form of electricity or in the form of light. So on the basis of the form of energy supplied to the reaction, decomposition reactions are further classified under thermal decomposition, electrolysis and photo decomposition. When we supply energy, energy तो required है. When we supply energy in the form of heat, the decomposition is called thermal decomposition. When we supply the energy in form of electricity, decomposition is known as electrolysis or electric decomposition. And when we supply the energy in form of light, it is called photo decomposition. क्लियर? ठीक है, एक एक करके हम तीनों को लेते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं. तो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फर्स्ट इज थर्मल decomposition. So in thermal decomposition, energy is given in the form of heat. Here energy is given in the form of heat. जब एनर्जी हीट के फॉर्म में दी जाती है तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है. ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे इजी एग्जांपल है. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्यों 2-3 ले लेंगे. व्हेन calcium carbonate is heated, when we give heat here, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. We should write the names here. It is calcium carbonate, it is calcium oxide, and you all know that it is
What it is? It is carbon dioxide. Okay. Another example is when ferrous sulfate is heated, it converted into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Okay, so these two are the examples of what? Thermal decomposition. Thermal decomposition में क्या होगा? Energy is supplied in the form of heat. Second is electrolysis. In electrolysis, energy supplied in the form of electricity. Okay, तो इसके एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ water. So when electrolysis of water takes place, it converted into hydrogen gas and oxygen gas. Now we have to balance it. Oxygen single 2H2 हुआ, यहाँ पे भी 2 किया. Here when it will happen? When the energy is provided in the form of electricity. When it will happen? When energy is provided in the form of electricity. Okay. Another example, electrolysis of brine. What brine is? Brine is nothing but the aqueous solution of NaCl. So when electrolysis of brine takes place, here we will give it electricity. It is converted into sodium metal. It is converted into sodium metal and chlorine gas. Here chlorine is 2, here it is 1. 2 से multiply किया, sodium becomes 2. यहाँ पे भी 2 से multiply. So it is all about electrolysis or electric decomposition. Here energy is provided in the form of electricity. Now next, photo decomposition or photolysis. Third kind of decomposition is called photo decomposition, or it is also known as photolysis. Okay, so in photolysis, energy supplied in the form of what? In the photolysis, energy supplied in the form of light. Form of light. एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इजी हैं. आप इसके एग्जाम्पल के लिए जो सिल्वर के कंपाउंड्स हैं उनको याद रख सकते हैं. सिल्वर ब्रोमाइड, when exposed to sunlight, it breaks up into silver and bromine gas. Here bromine is 2, multiply by 2, silver becomes 2, so 2. Okay, and similarly silver chloride, exposed to sunlight, it is converted into silver and chlorine. Okay, so these are the 3 classification of decomposition reaction and are very important. Itself these are asked into the question.
कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन where energy is supplied in the form of heat, electricity and light. Okay, so read it carefully. Okay, so pause the video to note it down. Now comes to the next kind of reaction, which is displacement reaction. Here as name suggests displacement, मतलब यहाँ पे displacement होगा, एक जगह से कोई भी चीज हट जाएगी. It's called displacement easily. Okay. तो डिस्प्लेसमेंट कौन किसका डिस्प्लेसमेंट करेगा? इन क्लास 8th यू हैव स्टडीड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था? कुछ मोर रिएक्टिव मेटल्स थे और कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स थे. कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? भाई जो ताकतवर होगा वही तो कमजोर को डिस्प्लेस करेगा, वही तो वहां से उसको उठा के फेंक सकता है, कमजोर ताकतवर को नहीं फेंक सकता. So the more reactive metal displaces less reactive metal from its solution. आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है, नहीं होगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा. आपको ये पता होना चाहिए कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, विच इज लेस रिएक्टिव. जनरली मैं एक आइडिया आपको दे देता हूं. पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन कम्स सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, then zinc, iron, हमें इतने की जरूरत पड़ने वाली है मोस्टली. आयरन के बाद कॉपर की भी जरूरत पड़ेगी. तो इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो यदि किसी भी केमिकल इक्वेशन में ऊपर वाला मेटल सिंगल होगा और नीचे वाला मेटल होगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में, देन इट कैन डिस्प्लेस इट. कैसे होगा मैं अभी बताता हूं. जस्ट लुक ओवर हियर, इट इज द रिएक्टिविटी सीरीज. हियर द मेटल एट द टॉप इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड द मेटल एट द बॉटम इज द लीस्ट रिएक्टिव. इसके नीचे फिर सिल्वर और गोल्ड आते हैं, तो उनकी हमें ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है. ओके, सो हाउ विल वी डिफाइन a displacement reaction? It is a chemical reaction in which more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution. Okay, so general form कैसा होगा इसका? जनरल फॉर्म ऐसा होगा, मेटल और ऐसा करते हैं. A plus BC gives you B plus AC. बट ये कब होगा? when A is more reactive than B. ओके, व्हाट हैपन्स इफ उल्टा हो? उल्टा कैसे? इफ यहां पर आ जाए B प्लस AC, देन व्हाट विल हैपन? देन नो रिएक्शन. तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, प्रोवाइडेड द सेम थिंग, दैट इज A इज मोर रिएक्टिव देन B. ओके, इतना बात समझ आया? एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ आएगा. For example, zinc when reacts with copper sulfate. अब देखिए यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज हमें काम आएगा. आपने देखा कि जिंक इज रिएक्टिंग विथ कॉपर सल्फेट, तो इज जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर? यहां पर देखिए A क्या है? A मीन्स जिंक, B is copper and C is sulfate, SO4. So if zinc is more reactive than copper, then only reaction will take place. तो रिएक्शन कब होगा? यहां पर देखिए जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है. Yes, it can easily displace. तो it will make zinc
सल्फेट। देखिए बी प्लस ए सी के फॉर्म में ले लेते हैं। तो बी इज वाट कॉपर डिस्प्लेस हो गया और जिंक ने सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लिया। ओके, व्हाट हैपन्स इफ कॉपर रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट? देयर इज नो रिएक्शन बिकॉज दिस वाला केस आ जाएगा। ओके, वन मोर एग्जांपल, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज अ ब्लू सॉल्यूशन और ये आपसे बहुत फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? It displaces copper from the copper sulfate solution and ferrous sulfate is formed. Here also ferrous is more reactive than copper, so it will happen FeSO4 plus C. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आया, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज नेम सजेस्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स दो चीजों का डिस्प्लेस हो रहा होगा। तो इसका एक जनरल फॉर्म होगा AB प्लस CD गिव्स यू, क्या होगा देखिए, यहां का जो A है इट विल बी कंबाइंड विद D एंड B विल बी कंबाइंड विद C. ओके, so it will be in the form of AD plus CB, not BC, because C is positive radical. AD plus CB इस फॉर्म में होगा। Means how can we define it? In double displacement reaction, the mutual exchange of ions take place. यहां पर देखिए A is positive ion, B is negative. Here C is positive, D is negative. So what happened? Mutual exchange of ions. ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। इसका पॉजिटिव इज चेंज्ड विद म्यूचुअल एक्सचेंज, C की जगह A आ गया और A की जगह C आ गया। सिमिलरली B की जगह D आ गया, D की जगह B आ गया। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेडिकल्स टेक्स प्लेस. These type of reactions are also called precipitate reactions. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को क्या और बोला जाता है? These are also called precipitate reactions because in such kind of reactions precipitate has been found. precipitate क्या होता है? कुछ ऐसा insoluble substance होता है जो कि नीचे जम जाता है। जैसे जब दूध फटता है तो ऊपर पानी रह जाता है और नीचे उसका थक्का टाइप का जम जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट. ओके, तो बात समझ आई. म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक एग्जांपल लेते हैं इसका. व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड. अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा. यहां पर पॉजिटिव रेडिकल इज सोडियम, इट विल टेक प्लेस ऑफ बेरियम. तो सोडियम को बेरियम की जगह लाइए और बेरियम को सोडियम की जगह लेके आइए. सो क्या होगा जब सोडियम बेरियम की जगह आएगा तो इट विल मेक NaCl एंड बेरियम जाएगा सल्फेट के साथ में, सो इट इज बेरियम सल्फेट. सोडियम और क्लोरीन दो दो थे तो यहां पर 2 आ जाएगा टू बैलेंस दिस इक्वेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नोट इट डाउन. चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमें क्लियर हो जाएगा. ओके, तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
This type of questions are asked in the exams also. Identify the type of reaction. हमने जो 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े हैं उनको इसमें आइडेंटिफाई करना है. These are the 4 different kind of reaction. आपको देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ओके, कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देखो. कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में होता है A प्लस बी गिव्स C टाइप. डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है A गिव्स B प्लस C टाइप. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, A प्लस BC गिव्स U AC प्लस B टाइप. मीन्स इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन नहीं होना है. डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, हियर बोथ आर द कंपाउंड्स. ओके, दे विल मेक AB प्लस CD, so they will make AD plus CB. ओके, तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 2 और मोर रिएक्टेंट्स 1 प्रोडक्ट. डिकम्पोजिशन में 1 रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स. डिस्प्लेसमेंट में 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड. डबल डिस्प्लेसमेंट में बोथ कंपाउंड्स. ये आप यदि याद रखेंगे तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. अब देखिए फर्स्ट, इट इज A प्लस बी इक्वल टू C टाइप. नो, एक्चुअली यहां पे कंप्लीट लिखा नहीं गया. AgCl प्लस NaNO3, इट इज द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन. तो फर्स्ट देखिए क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टिंग विद सोडियम क्लोराइड. तो कौन सा टाइप है, यहां से देखिए आप कौन सा टाइप बन रहा है. इट इज AB प्लस CD टाइप. बोथ आर कंपाउंड्स, हियर ऑल्सो बोथ आर कंपाउंड्स. सो इट इज व्हाट, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ सेकेंड, CaO plus H2O gives you CaOH whole twice. It is what kind, A plus B equal to C. 2 reactants 1 product. So it is combination reaction, first type. Combination. Next, 2 KCl of 3 gives 2 KCl plus 3 O2. It is A gives B plus C type. So it is decomposition. Decomposition reaction. Next, zinc reacts with ferrous sulfate to give zinc sulfate plus Fe. Here 1 element and 1 compound. So it is displacement. A plus BC gives AC plus B kind of reaction. So it is displacement reaction. Okay, pause the video to note it down. नोट कीजिए ऐसे. तो इसमें हमने ये 4 काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिए. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. If you like the video, then please give a like on the video so that I will make more such kind of these videos. Thank you. Bye bye.